हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर 25 स्पाइसी रिडल्स। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 25 है स्पाइसी रिडल्स। ठीक है, तो पहले हम चैप्टर रिवाइज करेंगे। ठीक है, रेड चिली इज़ अ मेन इंग्रेडिएंट यूज्ड फॉर एडिंग हॉट फ्लेवर टू द फूड। द antioxidants present in chili help to chop with cholesterol. It also helps burning calories. ठीक है, रेड चिली क्या होता है? मेन इंग्रेडिएंट होता है जो कि हम लोग खाना जो बनाते हैं उसमें फ्लेवर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, टर्मरिक इज़ यूज्ड इन कुकिंग एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स। टर्मरिक क्या होता है? वो कुकिंग में यूज़ किया जाता है और ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होता है। इट हैज़ वाइड रेंज medicinal uses. It helps deal with skin problems. Turmeric powder can be used for healing cuts and wounds. It also makes chopping with diabetes easier. ठीक है, तो टर्मरिक पाउडर का यूज़ हम लोग बहुत चीज़ों में करते हैं। स्किन प्रॉब्लम में भी यूज़ होता है, जैसे कि कहीं पे कट जाता है, कहीं पे घाव हो जाता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए टर्मरिक पाउडर का यूज़ करते हैं। ठीक है, पेपर इज़ इंटेंसिवली यूज्ड इन कुकिंग स्पेशली फॉर गार्निशिंग। ठीक है, जो पेपर होता है ना, जो मरीच होता है, गोल मरीच, तो इसको हम लोग कुकिंग में यूज़ करते हैं और स्पेशली ये क्या होता है? गार्निशिंग में यूज़ करते हैं। हम लोग कोई भी चीज़ जैसे खाते हैं तो ऊपर से जो स्प्रिंकल करते हैं, गार्निश करते हैं, तो पेपर से करते हैं। ठीक है, इट इज़ हैज़ मैनी मेडिसिनल यूजेस टू, और इसका बहुत सारा मेडिसिनल यूजेस भी है। ठीक है, इट हेल्प्स चॉपिंग विथ कोल्ड, कफ, infections, etc. It helps to deal with muscle pain and digestive problems. Cumin seeds is used for cooking and it also possesses medicinal properties. It is a good source of iron and keeps immune system healthy. Water boiled with cumin seeds is good for chopping with dysentery. Fennel seeds are mostly eaten after meals as their aroma works as breath freshener. Fennel is a good home remedy for many stomach and gastrointestinal problems. They also relieve chronic cough. ठीक है, जो फेनल सीड होता है वो बहुत चीज़ों में हम लोग जो माउथ फ्रेशनर के रूप में इसे खाते हैं। ठीक है, और इसे हम होम रेमेडी की तरह भी बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे स्टोमच प्रॉब्लम होता है कुछ, तो उसमें हम लोग खाते हैं। क्लॉव इज़ यूज्ड एज अ कुकिंग इंग्रेडिएंट मेनली फॉर सीजनिंग और प्रिपेयरिंग मसालाज। क्लॉव्स ऑयल इज़ beneficial for chopping with toothache and short gums. It is also beneficial remedy for chest pain, fever, digestive problems, cough and cold. Asafoetida is used for seasoning for especially snacks and has medicinal uses. A good remedy for wounding, cough and stomach ache caused due to gas. Bay leaf is used in cooking to add a specific flavor to food. It also has some medicinal properties. Bay leaf oil possesses antifungal and antibacterial properties. ठीक है, cardamom is used in most of the Indian and other sweet dishes to give a good flavor and smell. It is also used widely in pharma
pharmaceutical sector. It helps to control bad breath and digestive disorder. A whole cardamom chewed is good for chopping with diabetes. Diabetes. ठीक है. Cinnamon is used mainly for seasoning food and preparing masalas. It has medicinal uses too. It supports natural production of insulin and reduces blood cholesterol. Coriander leaves as well as coriander seeds are used in cooking. It also has some medicinal uses. It can be used extremely on itching joints and rheumatisms. It is also good for chopping with sore throat, allergies, digestion problems, hay fever, etc. Curly leaves is used as a main ingredient for seasoning in some countries. It has many medicinal uses. These leaves are beneficial for reducing blood sugar. Each part of the plant provides some benefits or the other. The dried leaves are extensively used in herbal medicines. Garlic is used for cooking as well as for the medicinal purpose. It is useful for chopping with cough and cold. It also has antibiotic properties. Ginger is used for giving a specific flavor to food and has many medicinal uses. Helps to avoid digestive problems. It is beneficial for chopping with cough and cold. Mustard is used for seasoning as well as green leafy vegetables. The use of mustard oil is extensive in India, but it is banned in some countries. Mustard oil is good for body massage and even for getting good hair. It consists of omega-3 fatty acids. It is an excellent source of iron, zinc, magnesium, calcium, protein, etc. Nutmeg is used in powdered from or for garnishing and also for masala preparation. It is used in soap, perfumes and shampoos. It can also be used for medicinal purpose. It is beneficial for the treatments of asthma, heart disorder and bad breath. Saffron is used for cooking as well as in beauty products. It is mainly used in sweet dishes. It has good medicinal properties. It helps to chop with skin disease. It is a good remedy for cough, cold and asthma. Star anise is used in cooking and for medicinal purpose. Star anise oil is helpful for digestion and avoiding bad breath. The Indian state known as the Spice Garden is Kerala. Kerala is a small state full of hills and hillock with stunning green sceneries. There are many spices growing naturally in abundance in the state. ठीक है. उसके बाद let's remember some facts. Peppercorn have been used to spice up foods for more than 4,000 years. Saffron is one of the most expensive spices in the world. A bowl of Spanish saffron costs. Nutmeg trees actually produce two spices, nutmeg and mace. Nutmeg is the seed of the tree while mace is the lazy radish covering on the nutmeg seed. Herbs are derived from a plant's leaves, whereas spices are sourced from the bark, bud, roots and seeds of a plant. This means you can have two very different flavors and products from the same plants. For example, fenugreek, a plant widely used in Indian cuisines, that is sold in both golden seed and green herbs from.
लेट्स थिंक अबाउट इट. व्हाट इज़ चाट मसाला? चाट मसाला क्या है? तो चाट मसाला इज़ अ टार्ट स्पाइस blend, while garam masala is a warm earthy blend. Glossary: spice, an aromatic or pungent vegetables substance used to flavor food, etc. Example: cloves, pepper or cumin. Pungent, having a sharply strong taste or smell. ठीक है, ये तो कंप्लीट हो चुका है. उसके बाद है माइंड मैप. तो इसमें मसालों के बारे में दिया हुआ है, सारा चीज़ है. ठीक है. इसके बाद आता है वर्कशीट 75. ठीक है. तो हु आई एम, राइट माई नेम. तो मैं कौन हूँ और मेरा नाम बताओ. ठीक है. तो देखिए क्या कहा जा रहा है, पहेली है ये. आई कैन बी पाउडर्ड फाइन टू मेक फूड हॉट एंड स्पाइसी. इफ़ टू मच ऑफ मी इज़ एडेड आई मेक यू गैस्प सी शी. ठीक है. ये बता रहा है कि मैं एक पाउडर में मैं एक फाइन पाउडर हूँ, फाइन पाउडर हो सकता हूँ जो मैं तुम्हारे खाने को हॉट एंड स्पाइसी बनाता हूँ. अगर तुम मुझे थोड़ा भी ज़्यादा डाल दोगे तो मैं कैसे करूँगा, सी सी. ठीक है. योर आइज़ एंड नोज़ बिगिन टू वाटर एंड यू क्राई. तो आपके जो है ना नोज़ एंड आइज़ जो है ना वो बिल्कुल ही पानी निकलने लगेंगे उससे. ठीक है. थिंक एंड टेल मी हु एम आई. टेल मी क्विकली हु एम आई. तो मुझे बताओ कि मैं कौन हूँ. तो कौन है आप देख सकते हैं इस पिक्चर में. तो ये है चिली. ठीक है, यानी कि मिर्च. मिर्च अगर हम खाने में थोड़ा भी ज़्यादा डाल देते हैं तो किस तरह से बिल्कुल तीखा लगता है हमें खाने में. ठीक है. और हम रोने लग जाते हैं. सेकंड है कि ग्राइंड मी एंड पाउडर मी. ठीक है, मुझे ग्राइंड करो और पाउडर बनाओ. टू मेक योर फूड लुक येलो, और मैं तुम्हारे खाने को येलो बना दूंगा. आई एम मिक्सड इन ऑयल बाय ग्रैनी एंड अप्लाई टू वाउंड क्विकली. और मुझे मिक्स करो. ठीक है, जो ग्रैनी बताती है, जो ग्रैंड माँ, तो ऑयल में मिक्स करो मुझे और अप्लाई करो वाउंड में क्विकली. यानी कि जो घाव होता है, कट होता है, कहीं पे कट चढ़ जाता है आपके पैर में, हाथ में, कहीं भी, तो उसमें आप इसे अप्लाई करें. आई हील ऑल वाउंड्स बिग एंड स्मॉल. तो मैं सारे हील्स को ठीक कर दूंगा, जो बड़े हैं छोटे हैं सभी को. दैट इज़ वाई आई एम लव्ड बाय ऑल. तो मैं सभी से प्यार करता हूँ. मैं क्यों सभी से प्यार करता हूँ? वाई, दैट इज़ वाई आई एम लव्ड बाय ऑल. ठीक है, मैं सभी के से प्यार किया जाता हूँ, सभी के द्वारा. थिंक एंड टेल मी हु एम आई. तो मुझे बताओ, सोचो और मुझे बताओ कि मैं कौन हूँ. टेल मी क्विकली हु एम आई. तो मैं कौन हूँ. तो कौन है, हल्दी, टर्मरिक, यानी कि हल्दी. ठीक है. तो हल्दी बहुत चीज़ों में, अगर खाने में हल्दी नहीं पड़ेगा तो खाना बिल्कुल बेस्वाद हो जाएगा. ठीक है. और हमें कहीं भी कट जाता है तो हम तुरंत ही हल्दी का लेप लगा लेते हैं तो वो ठीक हो जाता है. ठीक है, बहुत ही चीज़ों में हल्दी काम करता है. जैसे हमें अगर खांसी, सर्दी खांसी हो जाता है तो हम दूध में हम थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके अगर पी लेते हैं तो हमारा सर्दी खांसी ठीक हो जाता है. ठीक है. स्मॉल एंड राउंड लाइक अ पिल. मैं बहुत स्मॉल हूँ एंड राउंड हूँ, बिल्कुल पिल यानी कि मोती के जैसे दिखता हूँ. आई एम ब्लैक वैन आई एम होल. मैं ब्लैक हूँ लेकिन मैं पूरा हूँ. आई कैन बी पाउडर्ड कोर्स और फाइन. तो मैं पाउडर भी बन सकता हूँ और मैं ऐसे भी रह सकता हूँ, पूरा भी. इज शार्प एंड स्पाइसी टेस्ट इज़ माइन. तो मेरा जो है ना शार्प एंड स्पाइसी टेस्ट है. वेदर इट इज़ सॉल्टी और स्वीट. तो मैं सॉल्टी एंड स्वीट्स भी हूँ. ठीक है. नहीं, जहाँ मेरा टेस्ट जो है ना शार्प एंड टेस्टी हो जाता है, स्पाइसी हो जाता है, तो इसे हम जो है सॉल्टी एंड स्वीट सभी में यूज़ कर सकते हैं. आई एम एडेड एज अ स्पेशल ट्रीट. मैं स्पेशल ट्रीट में ऐड किया जाता हूँ. थिंक एंड टेल मी हु एम आई. टेल मी क्विकली हु एम आई. तो मैं कौन हूँ, मुझे बताओ. तो कौन है ये देख सकते हैं, ये स्पाइस क्या नाम है इसका, पेपर, यानी कि काली मिर्च, गोल मरीच जिसे हम हिंदी में कहते हैं. ठीक है. इसके बाद है आई एम अ स्मॉल एंड स्किनी चैप. समटाइम्स आई एम ब्राउन एंड समटाइम ब्लैक. तो मैं क्या हूँ, कभी कभी मैं ब्राउन भी होता हूँ, कभी ब्लैक भी होता हूँ. ठीक है. एडेड टू हॉट ऑयल एंड घी आई स्प्रेड माई फ्रेगरेंस ऑल अराउंड मी. ठीक है, अगर आप मुझे ऑयल में या घी में ऐड करेंगे
तो मेरा जो फ्रेगरेंस है ना वो चारों ओर फैल जाएगा। व्हेन आई एम रोस्टेड, जब मैं रोस्ट किया जाता हूँ, तो कर्ड एंड जलजीरा आर फेवरेट टू मी। ठीक है, तो रोस्ट करके हम इसे कर्ड में या जलजीरा में डाल के ये फेवरेट हो जाता है। ठीक है, थिंक एंड टेल मी हु एम आई, टेल मी क्विकली हु एम आई। तो कौन है ये, इसे सब जानते होंगे, ये है जीरा। ठीक है, आई लुक लाइक जीरा, तो ग्रीन एम आई। ठीक है, मैं जीरा की तरह दिखता हूँ लेकिन मैं ग्रीन हूँ। टू मेक योर स्टोमेच, मैं तुम्हारे स्टोमेच को बनाता हूँ। हेल्दी आई ऑलवेज ट्राई, तो हेल्दी बनाता हूँ इसीलिए मुझे हमेशा ट्राई करो। ईट मी ऑलवेज आफ्टर योर मील, तो मुझे हमेशा अपने खाने के बाद यूज़ करो। ठीक है, आई रिफ्रेश योर माउथ, यू श्योरली फिल, तो आपके माउथ को मैं रिफ्रेश कर दूंगा। ठीक है, थिंक एंड टेल मी हु एम आई, टेल मी क्विकली हु एम आई, तो कौन हूँ मैं, तो फैनल यानी कि सौफ। ठीक है, आई लुक लाइक अ नेल बट अ बर्ड एम आई। ठीक है, मैं नेल की तरह दिखता हूँ लेकिन मैं एक कली हूँ, मैं एक बर्ड हूँ। चॉकलेट ब्राउन कलर एंड अ स्ट्रॉन्ग स्मेल हैव आई, चॉकलेट ब्राउन कलर है मेरा और मेरा स्मेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। व्हेन योर टूथएच मेक यू साउट, जब आपको टूथएच होता है तो आप चिल्लाते हैं। आई सूट द पेन इन योर माउथ, ठीक है, मैं आपके माउथ का पेन ठीक कर देता हूँ। थिंक एंड टेल मी हु एम आई, टेल मी क्विकली हु एम आई, तो कौन है ये, कौन है, क्लॉप्स है यानी कि लौंग। ठीक है, जब हमें टूथएच होता है तो हम अगर एक लौंग को खा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, वर्कशीट 76। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है। फाइंड आउट विच स्पाइसेस आर यूज्ड इन योर हाउस फॉर कुकिंग। ठीक है, आपके घर में कुकिंग में कौन से स्पाइसेस का यूज़ होता है तो बताना है। मेक ए लिस्ट एंड लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट टू। ठीक है, तो आपके और आपके फ्रेंड के घर में तो ये सारा आपको बताना है। जैसे कि स्पाइसेस यूज्ड इन माय हाउस फॉर कुकिंग, तो मेरे घर में जो यूज़ होता है जैसे टर्मरिक, पेपर, जिंजर, क्यूमिन, सैफरॉन, स्पाइसेस यूज्ड इन माय, ठीक है, ये सब होता है। अब देखिए, अब स्पाइसेस यूज्ड इन माय फ्रेंड्स हाउस, ठीक है, फ्रेंड्स के हाउस में फॉर कुकिंग, तो अनियन, गार्लिक, टर्मरिक, पेपर, बेसिल, क्यूमिन, ये सब चीज़। ठीक है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। व्हेन योर ग्रैंड पेरेंट्स वेयर यंग, which spices were used most in their kitchen, find out from them and write here। ठीक है, जब आपके इसके जब जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स यंग थे तो उस समय में कौन सा स्पाइसेस किचन में यूज़ होता था। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे। तो जैसे कि पता करके ग्रैंड पेरेंट्स से पता करेंगे, जैसे कि रेड चिली, टर्मरिक, अनियन, कोरिएंडर एक्सेट्रा, तो ये सब चीज़ यूज़ होता था। अभी तो तरह तरह के मसाले निकल गए हैं। ठीक है, नेम वन स्पाइस विच इज़ पुट इनटू बोथ स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स, तो कार्डामम, इलायची। ठीक है, जो कि दोनों चीज़ों में, दोनों में, सॉल्टी में भी और स्वीट में भी, दोनों में डाला जाता है। तो क्या है ये, कार्डामम। फाइंड आउट व्हाट इज़ पुट इनटू फूड टू मेक इट टेस्ट सॉर। अब देखिए क्या चीज़ ऐसा है जो कि हम फूड का टेस्ट जो है ना, हम सार बनाने के लिए, खट्टा बनाने के लिए डालते हैं, तो विनेगर। फाइंड आउट वेदर एनी स्पाइसेस आर ग्राउंड इन योर एरिया, राइट देयर नेम्स हियर। ठीक है, कोई भी स्पाइसेस है जो आपके एरिया में ग्राउंड होता है तो उसका नाम बताना है। तो यस, इन माय एरिया चिली, टर्मरिक, जिंजर एंड गार्लिक आर ग्राउंड। ठीक है, ये सब चीज़ ग्राउंड होता है। ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द टू स्पाइसेस एंड राइट देयर नेम्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो पिक्चर बनाना है स्पाइसेस का, तो जैसे आप एक क्लॉव्स का बना सकते हैं, ठीक है, दूसरा आप जीरा का बना सकते हैं, क्यूमिन सीड। ठीक है, तो आपको जो भी इच्छा हो, जो भी मन हो, आप बनाएंगे दो। ठीक है, उसके बाद है वर्कशीट 77, रीड स्टोरी। और तो अब देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन है कि डिड यू एंजॉय द पोटैटो चाट, आप पोटैटो चाट को एंजॉय करते हैं, तो यस आई एंजॉयड द पोटैटो चाट। Just imagine if there were no spices to make the potato chaat, how would it taste? Its taste would not be good. Try to learn and make a different kind of chaat and enjoy it with all your friend in class. ठीक है,
एक डिफरेंट टाइप का चार्ट बनाइए और अपने क्लास में सभी फ्रेंड को बताइए, इंजॉय कीजिए। ठीक है, तो ये आप खुद बनाएंगे। हाउ डू स्पाइस लेस एंड वेरी स्पाइसी थिंग्स फील ऑन योर टंग? तो स्पाइसी थिंग्स गिव अ टिंगलिंग सेंसेशन ऑन माई टंग, स्पाइसलेस थिंग्स डू नॉट गिव सच सेंसेशन। ठीक है, उसके बाद है ब्रिंग सम होल स्पाइसेस टू क्लास। ठीक है, आपको कुछ स्पाइसेस जो है ना, होल स्पाइसेस अपने क्लास में लाना है। ठीक है, तो राइट देयर नेम्स इन द टेबल। ठीक है, तो इसको आपको टेबल में नाम लिखना है। क्लोज योर आइज एंड ट्राई टू रिकॉग्नाइज इच स्पाइस बाय स्मेलिंग एंड टचिंग इच वन इन टर्न। ठीक है, तो इसे आपको आंख बंद करके या टच करके इस स्पाइसेस को आपको पता लगाना है। पुट अ टिक मार्क इन फ्रंट ऑफ द वन योर रिकॉग्नाइज। अगर आप इसे पहचान लेते हैं तो टिक लगाना है। इफ़ यू डू नॉट रिकॉग्नाइज एनी, पुट अ क्रॉस मार्क। अगर नहीं पहचान पाते हैं तो इसमें क्रॉस करना है। ठीक है, तो जैसे कि है नंबर 1, जैसे कि स्मॉल स्ट्रॉन्ग, स्मॉल स्मेल जो है ना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। टच कैसा होगा उसका, स्मूथ होगा। नेम ऑफ द स्पाइसेस क्या होगा, चिली। फिर लाइट तो अनइवन स्मूथ, जिंजर। स्ट्रॉन्ग स्मेल है, ठीक है, अनइवन सरफेस, गार्लिक। स्ट्रॉन्ग स्मेल है, टच, स्मूथ, और नेम ऑफ स्पाइस टर्मरिक। स्ट्रॉन्ग है स्मेल और अनइवन सरफेस, कार्डामम। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा बना लेना है। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।